Good evening, class. In last video, we have discussed so many points regarding the xylem and phloem, and we have also discussed the complex and simple tissue which are found inside the plant cells. Okay, because in these chapters, generally we were studying the anatomy structure of flowering plants, so we have to study so many things of internal side from the plant section. Okay, so generally plant is a special part which comes in the botany section, and we have to discuss so much structures and define features of TS and LS. Okay, features of monocot and dicot roots, and also we have to study monocot and dicot leaf also. But in last video we have discussed so many points regarding the complex tissue, and we have discussed simple tissue, one of them distributed in xylem and phloem, and some of them distributed in further xylem fibers, xylem parenchyma, so many things we have discussed in last classes. So we are going to third phase of third lecture of anatomy structure of flowering plant. So in this lecture we have to study so many things regarding the most important dicotyledons root. Okay, after that we will also discuss the monocotyledons roots. Okay, why? Because all the roots are generally perform different function in the plant sections. So depending upon the nature of roots, which are generally found in monocot and dicot, we have studied so many times what is the difference between monocot and dicot. So we have to notice only one thing. In this, there is we have to study monocot, dicot, stem, roots and leaf also. Okay, and leaf में भी हमको बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है. So one by one we will discuss all the things. So let's start from the first one, that is dicotyledons roots. What is the meaning of dicotyledons? Generally, those seeds which are generally originated by dicot, means two types of layering, are called dicotyledons. And roots, we know that some of the plants also bear the dicotyledons roots, and some of the plants that can bear monocotyledons. So that we are going to study that the outermost layer is epidermal cells protrude in the form of root hair. यानी जो epidermal cells होती है, किसी भी अगर हम बात करते हैं dicotyledons roots की, तो उसमें जो आउटर लेयर में जो भी इपिडर्मल सेल्स है वो प्रोट्यूड होती है, फर्दर प्रोट्यूड इन द सेंस ऑफ एक्सपेंड. ठीक है, वो फर्दर प्रोट्यूड होती है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स हेयर, क्योंकि रूट्स के खुद के हेयर्स होते हैं जनरली, जो हम कई बार इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो इनके जो रूट्स हैं फर्दर वो प्रोट्यूड होते हैं, आगे की तरफ डेवलपमेंट करते हैं, और यही रूट हेयर जो है इट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट लेयर टू एपिडर्मिस इज अ कॉर्टेक्स. और अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं एपिडर्मिस का, तो उसके बाद का जो लेयर होता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं. सो मेनी टाइम्स कॉर्टेक्स में बी आस्क्ड इन एग्जाम पर्पस आल्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्टेक्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रूट सिस्टम एंड स्टेम सिस्टम. ठीक है, बहुत सारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनमें जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस का क्या रोल है, और वो जनरली होते कहां पे हैं, और उनको हम किस नाम से जानते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द पैरेन्काइमेटा सेल्स. लेकिन अगर हम बात करें कॉर्टेक्स का या जो भी बाहर का एपिडर्मल लेयर्स होते हैं, जनरली इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी सेवरल लेयर्स, मतलब इट इज नॉट मेड अप ऑफ वन लेयर, इट मे बी मेड अप ऑफ मोर देन 2 or 3 लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स. यानी जो प्लांट्स के जो सेल के जो सबसे आउटर में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एपिडर्मिस, वो जनरली कंपोज्ड होते हैं मोर देन बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और वो जो लेयर होते हैं वो पैरेन्काइमेटा सेल्स के होते हैं, क्योंकि हम इससे पहले स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा देख चुके हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट एंडोडर्मिस. अब हम बात करते हैं एंडोडर्मिस का, क्योंकि एपिडर्मिस है, इट मींस देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटीज ऑफ एंडोडर्मिस आल्सो. तो एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर आल्सो, एंड एंडोडर्मिस इज द इनर लेयर, but it continue and it perform different types of function as comparison to epidermis. So most important, अगर हम बात करें तो endodermis is the innermost layer of the cortex. ये cortex का cortex जो है next layer of epidermis होता है, but the inner layer of cortex is endodermis. लेकिन वही cortex का inner layer जो होगा उसे हम endodermis कहते हैं, and which bears the deposition of water impermeable waxy material, जो कि impermeable का भी काम करता है. impermeable और semi permeable का हमने कई बार बहुत सारे cells वगैरह में डिस्कस किए हैं. So most important, which bears the deposition of water impermeable waxy materials इनमें होते हैं, and called, इसको हम submarine, या फिर these are known as कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि वैक्सी लेयर यानी वैक्सी मटेरियल को डिपॉजिट या होल्ड करके रखता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड एज
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है, जो कि आपके इंडोडर्मिस लेयर के आसपास पाया जाता है। ओके, now we are going to discuss some more property of dicotyledonous root. So we have to discuss that in the cells of paracycle. What is the meaning of paracycle? We will also discuss. In the cells of paracycle, the initiation of lateral roots. Initiation of lateral root. We have discussed what is the meaning of lateral roots. So इनमें जो lateral roots का जो initiation होता है, means initiation मतलब starting जो होती है lateral roots, and vascular cambium we have also discussed takes place during secondary growth. तो वो secondary growth के टाइम पे होती है, मीन्स जब भी प्राइमरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी सेल्स मतलब जब ओरिजिनेट होते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उस टाइम पे वेस्कुलर कैम्बियम लैटरल रूट्स का जो है ना इनिशिएशन फर्दर स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो भी इनके साथ साथ जो है फर्दर क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने लगते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द डाइकोटिलेडनस रूट्स. नाउ नेक्स्ट we have to discuss the what is the meaning of pericycle. Pericycle का मतलब क्या होता है? Okay, so we know that pericycle is a unique layer of cells. Pericycle जो होता है वो एक यूनिक लेयर होता है किसी भी सेल्स का, बट मोस्टली इट इज फाउंड इन प्लांट सेक्शन की बात कर रहे हैं. सो pericycle is a unique layer of cells in plants named after its position. लेकिन इसका जो नाम रखा गया है जनरली इसके पोजीशन के हिसाब से रखा गया है, ठीक है, बिकॉज इट इज फाउंड इन द सेवरल प्लेसेस इन द रूट एंड स्टेम सिस्टम. रूट्स में अलग, स्टेम में अलग. सो इनके बाय लुकिंग द पोजीशन ऑफ पेरिसाइकिल के पोजीशंस को अच्छे से स्टडी करने के बाद दे हैव प्लेस्ड फर्दर पोजीशन एंड इनसर्कलिंग द वेस्कुलर टिश्यू इन स्टेम एंड प्लांट्स, ठीक है, चाहे स्टेम बोल दें या उसके जो प्लांट्स में जो भी सिस्टम्स, ठीक है, इस प्लांट्स की जगह पे है ना बहुत सारी चीजें आती हैं. सो इनसर्कलिंग द वेस्कुलर टिश्यू इन स्टेम एंड प्लांट्स, यानी प्लांट्स और स्टेम के सिस्टम्स में अगर देखा जाए तो जहां पे हमारा पेरिसाइकिल बिलोंग करता है, इट इज मेन पर्पस to show the position of pericycle of वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू के पोजीशन को शो करने के लिए पेरिसाइकिल जनरली किसी भी पोजीशन पे पाए जाते हैं, जनरल स्टेम में और प्लांट्स में, ठीक है, और फर्दर इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज रूट्स आल्सो. बट नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं पित्त की. प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पित्त. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पित्त? पित्त का मतलब क्या होता है? सो पित्त मींस इट इज अ स्मॉल इन नेचर, बहुत छोटे होते हैं, एंड मेडुला भी कहते हैं इसे, पित्त बोल दें या फिर मेडुला कहते हैं. एंड मेडुला इज द टिश्यू इन द स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. जनरली ये एक प्रकार के टिश्यू होते हैं कहां पे, इन द स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी जो वेस्कुलर प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, पित्त जो है वहां पे पाया जाता है. बट मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट पित्त इज फाउंड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस स्टेम. ये किसी भी स्टेम के सेंटर पोजीशन पे पाया जाता है, उसे हम पित्त कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, पित्त इज अ स्मॉल, मेडुला इज द टिश्यू इन द स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होंगे उनके बीच में सेंटर पोजीशन पे पित्त होगा. एंड पित्त इज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, वी हैव डिस्कस आल्सो, एंड पैरेन्काइमेटल सेल्स के बने होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पित्त के बारे में, पेरिसाइकिल के बारे में और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो एंड पित्त इज अ कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट, स्पॉन्जी, पैरेन्काइमेटल सेल्स. सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स के कंपोज्ड होते हैं. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पित्त? पित्त का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पित्त की बात करते हैं तो पित्त स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट्स, यानी इसका जो काम होता है पित्त का, क्योंकि सेंटर पोजीशन पे है, इट मींस दे हैव द ग्रेट पोटेंशियल to store and transport the different types of minerals and nutrients from the all the parts of body section. इसका मतलब जो पित्त है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि बहुत सारे जो जनरली इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, पित्त स्टोर फूड and transport nutrients. Okay, because I have repeated 2 times store, so you have to correct it. Pith generally store the food and transport of nutrients. Nutrients में भी different types. Nutrients भी बहुत सारे हो सकते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स, यानी पूरे प्लांट्स बॉडी में जो भी फूड का होता है स्टोरेजन वो पित्त करता है. उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम पित्त का करता है. सो पित्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पित्त, सो पित्त इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, यानी किसी भी स्टेम के सेंटर पोर्शन पे पित्त जो है अवेलेबल होते हैं. Okay, so that is all about the dicotyledonous roots. Next we have to discuss the monocotyledonous root. Okay, so
अगर हम नेक्स्ट फेज की बात करें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम अब देखते हैं मोनोकोटिलिडन्स रूट्स। ओके, डाइकोटिलिडन्स रूट्स आर जनरली डिफरेंट फॉर्म। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। ओके, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था और काफी एडवांस थे। सो मोनोकॉट में सबसे एक अगर हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे, उनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इट हैज कैम्बियम, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। अगर हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स का जो फॉर्मेशन होते हैं या जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कैम्बियम होता है, कॉर्टेक्स होता है और एंडोडर्मिस होते हैं, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड पेरिसाइकिल होता है। इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस डाइकोटिलिडन्स में हमने देखा पेरिसाइकिल क्या होते हैं। ठीक है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम एंड पिथ आल्सो। ठीक है, इनमें जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं और पिथ भी होता है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम में जो कि पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इनमें जो पिथ होता है, जनरली अगर हम बात करते हैं आपके डाइकोटिलिडन्स में, तो पिथ इज फाउंड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम, but it is very small in size. But pith is found in monocotyledons is well defined and very large in size. इनमें जो pith present होता है वो काफी बड़ा होता है और काफी well defined होते हैं। ठीक है, और which is also found in the central portion, ये भी central portion में ही होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और इनके पोजीशन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इट डज नॉट अंडरगोज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में जो मेन रोल होता है उसमें ये टेक्स प्लेस नहीं करते हैं, और जो डाइकोटिलिडन्स है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जाइलम बंडल्स जो थे डाइकोट में मैक्सिमम 2 to 4 होते हैं, बट हियर जाइलम बंडल्स आर फाउंड इन दिन मोर देन 6, यानी इनको हम पॉलीआर्क भी कहते हैं। इनमें जो जाइलम बंडल्स होते हैं मींस अरेंजमेंट ऑफ बंडल सीथ, यानी जो अरेंजमेंट होता है बंडल सीथ का वो इनमें 6 से ज्यादा पाए जाते हैं, जिसको हम पॉलीआर्क कहते हैं, और डाइकोटिलिडन्स में मोस्टली 2 से 4 होते हैं। ओके, सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट डाइकोटिलिडन्स स्टेम की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड मोनोकॉट एंड डाइकोट रूट्स। अब हम बात करते हैं स्टेम की। सो डाइकोटिलिडन्स स्टेम की बात करते हैं तो एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल के सेल्स से काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, कवर्ड होते हैं, एंड मे बियर ट्राइकोम्स। इनमें ट्राइकोम्स होते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द ट्राइकोम्स, है ना, जो कि हमने इससे पहले देखा था कि ट्राइकोम्स क्या करते हैं वाटर के कंडीशंस में। एंड स्टोमेटा, ठीक है, कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड एज आउटर हाइपोडर्मिस। जनरली इनमें जो कॉर्टेक्स पाया जाता है वो डिफरेंशिएट होता है, इनमें एक हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस का मतलब होता है हैविंग कोलेनकाइमेटस सेल्स, यानी इनके जो सेल्स होते हैं वो कोलेनकाइमा सेल्स के होते हैं, जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। एंड मोस्टली अगर हम बात करें मिडिल की, तो मिडिल में एक कॉर्टिकल लेयर होता है एंड इनर एंडोडर्मिस भी बने होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन बाय विच डाइकोटिलिडन्स आर जनरली फॉर्म्ड। और उसके बाद एंडोडर्मल सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। जनरली जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं किसके, डाइकोटिलिडन्स स्टेम की बात करते हैं, तो जो एंडोडर्मल सेल्स होता है these are very rich in starch, ये स्टार्च से काफी भरे हुए रहते हैं, और जनरली ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इट इज आल्सो नोन एज स्टार्च सीथ। इसको हम स्टार्च सीथ के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू द हाईली डिपोजिशन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इट इज कॉल्ड एज स्टार्च सीथ, जिसको हम स्टार्च सीथ के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो this is all about the dicotyledons stem. Next we have to discuss some more features of dicotyledons stems. Okay, so first one is vascular bundles are many and arranged in a ring form. इनमें जो vascular bundles होते हैं वो which is more than 3-4 काफी ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं vascular bundles। vascular bundle का क्या काम है वो भी हम देख चुके हैं। So vascular bundles are many and arranged in a ring form. इनमें जो vascular bundle का जो arrangement होता है वो ring form में होता है, and vascular bundle is conjoined open with an enlarged protoxylem. Okay, these two things are generally new for you, so it is your homework. You have to give me the meaning of enlarged protoxylem.
प्रोटोजाइलम, आई वांट टू टेल यू दैट प्रोटोजाइलम इज अ टाइप ऑफ जाइलम। जाइलम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेसोजाइलम, ठीक है। सो प्रोटोजाइलम का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडार्च एंड प्रोटोजाइलम। सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ ओनली एंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आंसर यू हैव टू सबमिट इन माय पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट, इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, एंड ओपन टाइप होते हैं, लेकिन इनके जो प्रोटोजाइलम स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंडार्च फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इंडार्च बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम में, क्योंकि डाइकॉट स्टेम इज सफिशिएंट एंड इट इज आल्सो गिवन एज एग्जांपल ऑफ योर सीपीएससी एंड एनसीईआरटी बुक। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम में, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ एंड आल्सो डॉर्सोवेंट्रली एंड आइसोवेंट्रली, जो लास्ट पोर्शन रहेगा वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होता है वो जनरली अरेंज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाइकोटिलेडन्स में जो वेस्कुलर बंडल्स था वो अरेंज्ड था, बट हियर द वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्कैटर्ड इन मैनर, स्कैटर्ड मतलब होते हैं बिखरे हुए, ठीक है। सो इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो जनरली स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल, ठीक है। ये इनकी जो सेल्स होती है वो सराउंड होती है स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीज से, लेकिन इनकी जो थी एक अलग सीज से कंबाइन थी, जैसे इनमें कॉलेनकाइमा होता है लेकिन इनमें स्क्लेरेनकाइमा होता है। सो दिस इज आल्सो टू डिफरेंस वी गॉट। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, सो इट इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सेल्स टिश्यू। इनकी अगर हम लास्ट पॉइंट पे देखते हैं तो इट इज अ कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड टाइप, ये कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज टाइप के होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द dicot, monocot, root and stem also. In next video we will discuss very detailed functions of monocot and dicot leaf, and also we will discuss the dorsoventrally and in isoventrally leaf structures. Okay, till then whatever I have taught you today you have to revise very well, and if you have any doubt you can contact me. But before completing my last topic you have to write an answer of enlarged protoxylem, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? When you have completed then send me in my personal WhatsApp. Thank you students.